بڑے مزے سے کھا رہا ہے امر. لسی پیو، اس طرف ہے، پینے والی چیز ہے. پیٹ بڑھ جاتا ہے اور ہاضمہ بھی ٹھیک رکھتا ہے، پیو. بارالہا اس دسترخوان کے مالک کی رزق و روزی میں اضافہ فرما. شکر میرے پروردگار. خود کو مت تھکاؤ، ہماری نعمت کے لیے شکر کی ضرورت نہیں ہے عقیل. امر، ہمارے چچا زاد بھائی کے آگے ہماری ناچیز حیثیت کا تعارف کرواؤ. حکم سر آنکھوں پر. ایک طبق اوڑھے ہوئے ارغوانی ورق، چھنا چھن سکوں سے لق و دق، 3 لاکھ شامی دینار، چھن چھنا چھن چھن. امر، کیا ہے؟ میرا یہاں آنا حماقت تھا نا؟ نہیں، لیکن قیمت میں ذرا حماقت کی ہے. کچھ زیادتی کی ہے؟ بالکل. علی کے مقابلے میں جو قیمت تم نے وصول کی ہے وہ تو ایک معمولی سے باغی بدو عرب کے مقابلے میں ادا کی جاتی ہے. مجھے کتنا مانگنا چاہیے تھا؟ ساری دنیا بھی کم ہے. لیکن اتنا پیسہ میری دنیا کے لیے بہت ہے. بے شک، بے شک بہت ہے، تمہارے لیے بہت ہے. کچھ سواریاں خریدوں گا جن پر زائروں کو کعبے لے جاؤں گا، لاؤں گا. ہاں، یہ میں کر سکتا ہوں. ہاں، کر سکتا ہوں. ہاں، کر سکتا ہوں. ہاں، کر سکتا ہوں. ہاں، کیوں نہیں کر سکتا. ہاں. بخشی ہوئی چیز کو ہم واپس نہیں لیتے. کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہارے ان سکوں کے بدلے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ممبر پر جاؤ، شام اور کوفہ کا حال بیان کرو. کیا بیان کروں؟ جو حقیقت ہے یا جو تم چاہتے ہو؟ علی کی بے دادی اور ہماری کرامتیں. ابا یزید، خدا کی قسم، علی وہی کھاتے ہیں جو مسکین کھایا کرتے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کے پیشوا کو فقیر ترین زندگی گزارنا چاہیے تاکہ بندگان خدا اپنے فقر کی وجہ سے کسی شرمندگی کا شکار نہ ہو. عقیل، ممبر پہ جا کے واز و نصیحت کرو، نہ علی کے کمالات و کرامات. میں چاہتا تھا کہ اپنی ذمہ داری اور بہتر سمجھ لوں. علی نے اپنی زمین میرے حوالے کی تاکہ اس پر کاشتکاری کروں اور اپنے رزق و روزی کو زمین سے حاصل کروں. علی سے میں نے کچھ رقم مانگی تاکہ اس رقم سے میں تجارت کروں، اور جب انہوں نے میرا اصرار بڑھتے دیکھا تو ایک گرم لوہا میرے ہاتھ پر رکھ دیا. اس کے بعد ان کے گریے کی میں نے آواز سنی. کہہ رہے تھے، عقیل، عقیل، جب تم اس ذرا سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے
تو بتاؤ آخر میں کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ یہی جو میں تمہارے پاس آ گیا، علی پر بہت بڑا ستم کیا، یہ کافی نہیں؟ عقل مندی سے کام لو عقیل. میرے 3 لاکھ دینار کی بخشش میں ایک اچھی زمین اور مزین گھر خرید سکتے ہو جو علی کی بیعت میں رہ کر تم فقط خواب دیکھ سکتے ہو عقیل. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. عقل سے کام لو، عقل مندی سے. رقم تو ضرور اچھی ہے، لیکن علی کی قیمت نہیں. کدھر چل دی ہے؟ اگر پوری حکومت شام کو بھی میرے حوالے کر دو گے تب بھی علی کی قیمت نہیں ہو سکتی. رک جا، رک جا عقیل، مت جا. علی کے فضائل سن سن کر دیوانہ ہو گیا ہوں. اب جنگ کے علاوہ کسی چیز پر راضی نہیں. جنگ کروں گا. عربوں کی ہیلہ گر اولاد انتہائی کوششوں اور ہزاروں خطوط کے باوجود بھی غیر جانبدار بزرگوں کو حکومت شام کی طرف جذب نہ کر سکی. دور اور نزدیک اصحاب میں سے چند افراد اور خلفائے گزشتہ کے اقربا میں سے فقط خلیفہ ثانی کا بیٹا تھا جو امام علی علیہ السلام کی عدالت سے خوفزدہ ہونے کے سبب شام کا رخ کرتے ہیں. دمشق کے امراء جب اپنے دعوت ناموں سے مایوس ہو گئے تو ایک نیا ہیلہ اختیار کیا اور جعلی دستخط و مہر کے ذریعے امام علی کے بعد اصحاب کو شام کا حمایتی ظاہر کیا تاکہ اصحاب امام کی صفوں میں رخنہ ایجاد ہو. اس مکاری کا شکار ہونے والوں میں ایک قیس ابن سعد تھے جو امام کی جانب سے مصر کے والی تھے، اور وہاں رہ کر انہوں نے اپنی درایت و تدبیر کے ذریعے شام کے اثر کو سرزمین نیل میں آنے سے روکا، اور مصر آمد کے بعد بہت کم مدت میں امام کے مخالفوں، خلیفہ مقتول کے قصاص طلب کرنے والوں اور جنگ جمل کے فراریوں کو حکومت کوفہ کا مطیع بنایا. لیکن دارالفتنہ شام کا یہ ہیلہ ایسے لائق والی کے بھی زانو ٹیک دیتا ہے. کھولو دروازہ، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. تم کو میں نے کہیں دیکھا ہے. میں معاویہ ہوں، معاویہ ابن ابی سفیان، خاندان بنی امیہ سے. تب تو اپنوں ہی میں سے ہو، پاس آؤ نا. کرتے کیا ہو؟ خلیفہ بننا چاہتا ہوں. کیا؟ سر سے پیر تک دیکھوں تو ذرا. بن سکتے ہو، رکاوٹ اس کا کچھ چکر چلانا ہوگا. قیس کو جانتے ہو؟ قیس علی کا سفیر. نہ پیسے سے قابو آتا ہے اور نہ ہی طاقت سے. تمام بزرگوں اور ثروت مندوں کے خطوط کے برابر اس کو خط لکھے.
लेकिन जवाबों में हमें कुत्ते के बराबर भी अहमियत नहीं देते। खलीफा बन के क्या गुल खिलाना चाहते हो? मैं सारी दुनिया को फतह करूंगा। सारी दुनिया? हाँ, तो इसमें हमारा हिस्सा कहाँ जाएगा? तुम्हारी हुकूमत में हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए, ऐसा नहीं है? तुम कौन हो? जुल्फ़िकार अली की धार हूं। मुझसे क्या चाहते हो? अगर हमें जंग पर मजबूर किया तो हम भी तुम्हारे लिए जहन्नम बना देंगे। मेरी तलवार कहाँ है? कहाँ है मेरी तलवार? वो यजीद यहाँ है। परेशान कुन ख्वाब देख रहा हूं। वहशतनाक ख्वाबों से जान नहीं छूटती। या जहनी परेशानी है या शिकमपुरी की वजह। दिल जो भरा है। अली तुम्हारे अजदाद का कातिल। कैस के साथ क्या करेंगे अम्र? कैस और जुरैर की तहरीर में मुआवियत इब्न अबी सुफियान के नाम जाली खत लिखेंगे, जिसमें यह लिखा होगा कि हम मुआविया के हाथों बैअत करते हैं और खलीफा मकतूल के खुखाओं की हौसला अफजाई के लिए हर कोशिश के लिए तैयार। कूफी सरदार की गद्दारी का ये दस्तावेज हम अली के पास भेज देंगे। फिर तो क्या, कैस अपने ही अफराद के हाथों मारा जाएगा। देख रहे हो, इस तहरीर में और कैस की तहरीर में जर्रा बराबर फर्क नहीं है। तहरीर की नक्काली में तो मैं माहिर हूं ही, देखो इसकी मोहर भी बना डाली। बदबख्त, बदबख्त। जाओ मोहम्मद, उन मक्कार नाबिका की औलाद को मिटा डालो। फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह। मोहम्मद, कहाँ की विलायत मिली है? मिस्र। यानी कैस के लिए फातिहा पढ़ डालें? इस लानती कैस ने अली का एतमाद खो डाला। अभी कैस के बारे में कुछ कहना ज़ेबा नहीं है। वो शामियों के साथ नहीं मिले हैं, यकीनन उनके बारे में धोखा हुआ है। फिर यह हुक्मनामा तुम्हारे हाथ में क्यों? जाहिलों के खैरखाना एतराज से तंग आकर मौला ने कैस को माजूल कर दिया है। साहबजादे, बिलफर्ज अगर माविया के नाम कैस का खत जाली भी हो तो जमल के फरारियों और अबुल हसन के दुश्मनों के साथ समझौता भी छूट है। जो भी मिस्र से आया है हर एक यही बताता है कि कैस दुश्मन और दोस्त सबको एक ही लाठी से हाँकता है। उसकी खयानत में शक न करो, जाओ उसके शर का खात्मा कर डालो। हशस, सिन्नो साल में मुझसे बड़े हो, शर्म आती है तुमको नसीहत करते हुए। बगैर सोचे समझे बात ना करो, यूं किसी मोमिन पे तोहमत नहीं लगाते। खुद तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें होती हैं, बिला तहकीर कबूल कर ली जाए। मैं तजदीद बैत के लिए जा रहा हूं। कैस के जूतों में कंकड़ तो नहीं थे, रियासत छोड़कर कूफे आता और तजदीद बैत करता। अशास, बैत नहीं करोगे? तुम्हारी बैत का कोई फायदा भी है? अली रोजाना 3 दीनार से ज्यादा नहीं देते।
मैं तुम्हें जो चीज दूंगा वो ऐसा लिबास है जिस पर सोने की कढ़ाई हुई है। उस लिबास को जब तुम पहनकर निकलोगे तो दूर से पहचान लिए जाओगे। आशस, बेकार सरोदुम हिलाए फिर रहे हो, लोमड़ी। हमारे नाखुदा की कश्ती कौन से तूफान में फंस गई है? बेफायदा है मोहम्मद। माजूली से हुकूमत की बुनियाद कमजोर पड़ती है। मोहब्बत की राह में अभी लड़खड़ा रहे हो। तय तो हुआ था मेरे रकीब बनोगे मोमिन। रहूंगा। तो शक ना करो। शक नहीं किया है। दिल इश्क और मोहब्बत से माला माल है। फकत कूफियों की जहालत से डरता हूं। मालिक, कहा सुना माफ। शायद दोबारा मुलाकात मयसर ना हो सके। तमन्ना तो थी कि अली के रिकाब में तुम्हारे और अम्मार के शाना बशाना जंग करता। मिस्र मुकद्दम है मोहम्मद। जाओ, खुदा हाफिज। मालिक, वक्त आ गया है सरदार। घोड़े को तैयार करो, लश्कर को महाज पर बुलाओ, सब नुखैला में जमा हो जाएं। अली आज़िम शाम है। कुताम, कुताम, मेरी नूर चश्म, कहाँ गई तुम्हारी वो अमीर कुश जबान? कुछ तो बोलो कुताम। अभी तुम्हारा सर दर्द खत्म नहीं हुआ? कुताम। अभी तक बेहाल है। दर्द कोई लाइलाज मर्ज तो नहीं? जरूर इसकी कोई दवा होगी। हकीम के पास जाकर न देखूं? दर्द उसका कफस है जिसमें ये कैद होकर रह गई है। काश उसके बाल और पर न काटे होते। हम क्यों डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? इससे कि खुद अपना दरवाजा बंद कर लिया। यह शरी का मक्र था हारिस कि उसने हमें खाना नशीन बना दिया। वो जानता था कि उसके लिए हम रुकावट है।
कौन जानता है कि खलीफा का कातिल कौन है? हरस अगर अशरी जैसे चिमकाडर की बातों से डर कर मैं घर में बैठा छुपा रहूं तो ऐसी जिंदगी पर तुफ हो। मेरी गोशा नशीनी की दलील शर्मिंदगी है। हम लोग तो हमेशा 7-8 रकात पीछे हैं। बेतवज्जोही से जहाद जमल हाथ से निकल गया। अली का अकील के साथ सुलूक बताता है कि अली बातिल पर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अभी तो अली के बिस्मिल्लाह की बे हुई है। अगर हक उनके साथ है तो तलाफी के लिए मौका है। मुआविया अली की बैत नहीं करेगा। तुम बताओ मैं क्या करूं मेरी नूरे चश्म। ख्याल रखना तुम लोग खुदाम का। कोई आ रहा है? मेहंदी बदशगुनी है। कुछ बोलो। मेरे भाई चले गए हैं। खुदाम कब अपनी जबान खोलोगी? तो कूफा की बुलबुल थी, दुख्तरे कूफा। कुछ तो बोल, हमारा दिल फटा जा रहा है। दुख्तर कूफा जमल में मर चुकी। मेरा नाम खुतामा है। मैं एक कुंवारी लड़की हूँ। मुझे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए।
ये रोज रोशन का दहकता आफताब तुम्हारी हिम्मत और वफा की गवाही देगा कि तुम लोग हिंद शाम के जिगर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आए हो। शक न करना कि तुम लोग रसूल खुदा की रकाब में तलवार चलाओगे। अब तैयार हो जाओ अपनी कामयाबी के लिए। अली ने ऐसे वैसों के ताने बर्दाश्त कर लिए हैं कि शायद शाम का अबू तमा अपनी आखिबत संवार ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग हमारे दीन और जान के दुश्मन हो गए। बताओ हम क्या करें? क्या बिलाल और हमजा का दुख भी हम अपनी कब्रों में ले जाएं? अबू जर, शहीद रबज़ा को न भूलना। बार बार अपने आप को पहचानवाओ कि किसके लिए और किसकी राह में लड़ रहे हो। अगर मालिक से पूछो तो जुर्अत से कहूंगा कि न जिंदगी की फिक्र करो और ना ही मौत की। ऐ फर्जंदान हमजा, अबू फितना के धोखे में गिरफ्तार होने वालों के लिए एक और खैबर बना डालो। अपने सरदार लश्कर के हुक्म पर अमल करना। अली की नसीहतों को न भूलना। दुश्मन को कभी गाली न देना। बेहुदा बातों से परहेज करो और फतह शुदा इलाकों की हिफाजत करो। ये जान लो कि जंग में तलखी ज्यादा है। जो अक्ल के साथ जंग नहीं करते वो अपने साथ सारे लश्कर को भी नाबूद कर देते हैं। हिकमत को तलवारों के साए में सीखो। अली के लश्कर का मैं भी एक सिपाही हूं। नीयत कर ली है कि 100 मालिकों की जगह अकेला तलवार चलाओ। बताओ तुम क्या करोगे? ये तू क्या कर रहा है बदबख्त? मश्क निजामी कर रहा हूँ अम्मू। मश्क निजामी कर रहा है? मेरी कमर अगर टूट जाए तो इब्ने वहाब की तलवार क्या तेरा बाप अपनी कमर से बांध लेता? आधा सिपाहियों का सालार हूँ शेख। किसने तुझे सिपाह सालार बनाया? तेरे होश व आवास ने। एक नहीं रहा, मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ। तेरे कपड़ों से अब तक दूध की बू नहीं गई। ये जो ताक तू मश्क निजामी कर रहा है, किसी ने तुझे बुजुर्गों के एहतराम की मश्क नहीं दी। बुजुर्गों की गर्दन में तलवार लटक रही हो तब मेरे सरदार हैं। अगर कोई दरख्तों में झूला बांध कर झूलता रहे तो मेरे दुश्मन के लश्कर का सिपाही है। तू किसका बेटा है? मैं फरजांद ओहद हूं अम्मू। ए सिपाहियों, मेरे हुक्म पर अमल करो। ओ बगैर तलवारों के पानी में कूद जाओ। देखा तूने वो तुझसे कितना छोटा था, तेरी आधी उम्र का।
तेजी उसकी तलवार जैसी थी। मेरे पैर डगमगाए नहीं, मेरे हाथ थर्राए नहीं, मेरे वार खता गए नहीं। तो एक एक आके मश्क करे। कश खा गया। डर के मारे उसे पानी में डाल दो। खामोश। पलट जाओ, हमला। अच्छा नहीं था। चलो फिर से। हमला। तुम लोग अपने मामू पे गए हो। मिर्च मसाला अगर बेचने के लिए भेज देता तो शायद बेहतर होता। बुज़दिलो। अबुल हक, ये तीरंदाजों की सफ है। हाँ, मैं देख रहा हूं। ये मश्क कर रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है। ये मिजाज का वक्त नहीं है, पीछे हट जाएं। तुम्हारे तीरंदाजों के साथ मैं भी इम्तिहान दे सकता हूँ। कूफे से नुखैले तक सही सालिम जो आ गए हो, यही काफी है। शर्त लगा लो। लगा ले। करें। अगर शर्त हार गए तो साहिल से उस तरह तक दौड़ लगाना होगी। जीत गया तो? जीतोगे? क्या मुझे तीरंदाजों का सरदार बना दोगे? सुना हो तुम सबने? देख रहे हो उस निशाने को? निशाने की दाईं आंख को देखो। अरे वाकई मार दिया। अब बाईं आंख को देखो। मरहबा, मरहबा अबुल हक, मरहबा। देखा, तुम्हारे दादा के बराबर है। आज के बाद अबुल हक तीरंदाजों के सालार हैं। पुलों को तोड़कर हमारी कश्तियों को भी ले गए। क्या करोगे मालिक? मैं जानता हूं क्या करें। इमाम का हुक्म है कि लोगों से आश्ती रखें,
ان کے آنے تک اسی جگہ پہ خیمے لگائیں گے۔ معاویہ کے حکم اور امریاس کے مکر سے اس پل کو جو فرات پر بنا ہوا تھا اور امام کے لشکر کی گزرگاہ تھا توڑ ڈالا۔ امریاس اپنی اس حرکت سے لشکر امام کی مبتکرانہ صلاحیتوں کو دیکھنا چاہتا تھا اور لشکر امام میں چارہ جوئی کی قدرت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ مالک اشتر نے، جو امام کے لشکر کے تلیے دار تھے، ایک دلیرانہ اقدام کے ذریعے اپنے چند افراد کے ہمراہ رقہ نامی علاقے سے دریا میں گھوڑے اتار دیے اور دریائے فرات کو عبور کر کے اہالی رقہ کو تیار کیا کہ وہ ٹوٹے ہوئے پلوں کی مرمت کریں۔ اہالی رقہ پر خوف طاری ہوا اور وہ اطاعت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح لشکر امام کے لیے دریائے فرات کو عبور کرنے کا راستہ ہموار ہوا۔ تاریخ میں مالک اشتر کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ اسے شمار کیا جاتا ہے۔